after a resounding mandate, first-time MLA Bhajan Lal Sharma has been sworn in as the Chief Minister of Rajasthan. Known as a selfless and humble worker for over 3 decades, Sharma started his day by washing the feet of his parents, seeking their blessings on a day when he would take the reins of India's largest state. His dedication and commitment towards the party was acknowledged by the BJP, who chose him to lead their government in the desert state. Taking umbrage over the affront, BJP has branded these remarks as a symbol of Parivar's party's feudal mindset, because the Congress has also been now attacking him, saying that he's a nobody knew about him, who is Bhajan Lal, and the BJP has responded to it. In fact, the BJP, in response to the charges which have come from the side of the opposition, said that ever since the opposition has been snubbed by the electorate, they are finding it difficult and they are finding ways to undermine the mandate of the people. In fact, as far as the Congress is concerned, they have been saying that he is not fit to be the Chief Minister of the state. In fact, however, even on the day, or rather the day of the oath taking, the Congress ended up insulting the man who will be representing the mandate which he won, rightfully so, by 115 MLAs. Former Congress Minister Bhavar Jitendra Singh said that Sharma was chosen only because he would be a pliant candidate, and went on to question and insult his credentials. और ये मुख्यमंत्री तो जो है वो आप ही जानते हैं। मुझे अभी बताया गया कि सरपंच भी नहीं रहा, सरपंच हारा हुआ सरपंच है। तो आप सोचिए किस तरह का राज चलने वाला है। इस तरह के लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये हमारे लिए नहीं, शासन के लिए सिर्फ नहीं, लेकिन राजस्थान के हर राजस्थानी के लिए अपमान की बात कि ये सबसे कमजोर व्यक्ति ढूंढते हैं, सबसे कमजोर व्यक्ति ढूंढते हैं जो रिमोट कंट्रोल का हो। ये शासन राजस्थानी नहीं चलाएगा इस शासन को। ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरकार चलाने वाले हैं। And taking umbrage over the affront, as we were saying earlier, BJP has branded these remarks as a symbol of Parivar's feudal mindset. Listen into the BJP reactions. राजस्थान में करारी हार झेलने के बाद भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का अहंकार टूटने का नाम नहीं ले। तो जितेंद्र सिंह जी बताएं, जब उनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया था तब कितनी बार सांसद रहने का अनुभव था उनके पास? या कांग्रेस पार्टी के बाकी नेता राहुल गांधी को जब राष्ट्रीय महासचिव बनाया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया? All right, Arvind is on the phone line with us. Arvind, the big war of words has now emanated over the Congress attacking the Chief Minister of Rajasthan, calling him a pliant candidate, saying that this was the only reason he was chosen. BJP saying that this is insulting the mandate of the people. Arun, apologies, this is Arun with us. Arun, take us through the latest as far as the war of words is concerned. Yeah. Can you repeat that? Yes, Arun, I was just asking you the war of words as far as the BJP and the Congress is concerned, because भाजपा का कहना है, कांग्रेस का पहले कहना है कि भजन लाल को चूज किया है just because he'll be a pliant candidate, और कांग्रेस of course सर उन्होंने रिस्पॉन्ड कांग्रेस का कहना है कि उन्हें सिर्फ इसलिए चूज करा गया है क्योंकि वो एक प्लायंट कैंडिडेट हैं। इसका जवाब तो खुद जितेंद्र सिंह जी अपने आप से ले रहे हैं कि आज कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से चाहे राजीव गांधी आए तो उनको कितना अनुभव था, राहुल गांधी को आप नेता बना के घूम रहे हो पिछले 15-17 साल से, आज तक वो नेता नहीं, ना देश की समझ ले पाए, ना राजनीति की, ना संसद की समझ ले पाए। आज जिस तरह से भजन लाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पिछले लगभग जितनी मेरी याददाश्त में 25-27 साल से पब्लिक लाइफ में एक्टिवली काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, सरपंच से अपनी राजनीति शुरू करने का काम किया, पंचायत समिति के सदस्य रहे, उस व्यक्ति को भी नया कहते हो तो आपकी जानकारी की समझ की बात है कि किस तरह की स्थिति चलते हो। जितेंद्र सिंह जी खुद भी जब आए थे। सर, आपका क्या कहना है? क्या आप कहेंगे कि कांग्रेस ने लोगों का मैंडेट इंसल्ट किया है? बिकॉज 115 एमएलए है, भारी बहुमत से भाजपा जीती है, और जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है उनके बारे में आज कांग्रेस कह रही है कि उन्हें चूज किया गया है क्योंकि वो इतने नोन नहीं है और वो बस सेंट्रल कमांड की बातें मानेंगे। एग्जैक्टली दोनों चीजें हैं, एक तो किस तरह का उनका कंट्रीब्यूशन, कांग्रेस का एलिगेशन, दूसरा ये कोई नॉमिनेशन नहीं है, दिस इज नॉट द नॉमिनेशन बाय द सेंट्रल बीजेपी, दिस इज द इलेक्शन बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द बीजेपी असेंबली। उन सब ने मिलकर के चुना है भजन लाल शर्मा जी को,
इसलिए कहीं इसको हम ये नहीं कह सकते नॉमिनेशन। इस तरह के 115 विधायक और उसके 15 विधायकों के साथ राजस्थान की जनता का अपमान करने का काम गजेंद्र सिंह जी ने किया है। तो उनको अपने सारे जनता से, राजस्थान की जनता से क्षमा मांगनी चाहिए और स्वयं अपने गरिबान में झांक के देखना चाहिए कि कांग्रेस किस तरह की राजनीति कर रही है और बार बार जनता का अपमान करने का काम।